Good evening, learners. Today we will discuss a new topic that is on Bolshevik Revolution. Here in this video, we basically discuss the significance of Bolshevik Revolution. But before going to discuss our main topic about the significance of the Bolshevik Revolution, first we have to know some basic facts about Bolshevik Revolution. So Bolshevik Revolution occurred in October 1917. It was a proletarian socialist uprising inspired by the communist ideals. It aimed to establish more egalitarian and just society in Russia. So ये जो Bolshevik Revolution है वो हुआ था 1917 पे in the month of October. और ये actually एक proletarian socialist uprising है और communist ideology से inspired है. और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अपराइजिंग हुआ था, ये एस्टैब्लिश क्या करना चाहते थे? ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे एक इगैलिटेरियन जस्ट सोसाइटी रशिया में. सो दिस वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री लेड बाय द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, पार्टिकुलरली द बोल्शेविक्स. तो ये जो रिवॉल्यूशन था वो मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन था, सोशलिस्ट मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन था हिस्ट्री में. जो किसने लेड किया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने, बेसिकली द बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स कौन थे? जो लोग प्राइमरी द सपोर्टर ऑफ लेनिन. द रिवॉल्यूशन वाज ड्राइवन by the working class with significant involvement from the peasantry. So ये जो रिवॉल्यूशन है इसको लीड किया था वर्किंग क्लास ने. यहाँ पे वर्किंग क्लास में मेजॉरिटी कौन थे? द पीजेंट्स, फार्मर्स. सो आई हैव डिवाइडेड द सिग्निफिकेंस ऑफ this revolution into four parts, or we can say in four aspects. In economic aspects, we can say this revolution ended the monarchical system. Then also abolition of private property. The Bolshevik Revolution abolished private ownership of means of production, including land, factories and banks. So these assets were nationalized and became state-owned rather than being in private hands. So क्या हुआ? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो एबोलिश किया गया और उसको किसने रिप्लेस किया? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में जाएगा? पब्लिक, मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथ में. देन इन नवंबर 1917 द लैंड डिक्री was enacted abolishing landlordism. The land was redistributed to peasants for hereditary use, ensuring more equitable access to agricultural resources. तो और एक क्या हुआ? जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम का क्या किया? एबोलिश किया गया और जो लैंड मतलब ओन करने का जो या लैंड रखने का जो पहले सिस्टम था उसमें भी क्या लाया गया? चेंजेस लाया गया. और जो लैंड था वो जमींदार के उधर से लाके क्या किया? जो पीजेंट्स थे उन लोगों के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया. Then another we can say centralized planning. Under socialism, the Russian people became equal beneficiaries of country's resources and economy. Central planning allowed for coordinated development across all regions and sections of the society. So another is on social field, or we can say social aspects. The revolution championed the cause for social justice by following means: by destroying private property in the means of production. The revolution also destroyed the roots of social inequality. It laid the groundwork for a classless society. So ये क्या मीन करता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो था वो डिस्ट्रॉय करके क्या किया? सोशल इनइक्वलिटी का जो मेन रूट मतलब मेन कॉज है उसको भी डिस्ट्रॉय किया और उसके साथ साथ एक मतलब क्लासलेस सोसाइटी का भी फाउंडेशन तैयार किया. देन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फ्री मेडिकल केयर, फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड इक्वल एक्सेस टू कल्चर एंड कल्चरल एडवांसमेंट. सो आफ्टर रिवॉल्यूशन जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इंश्योर किया? फ्री मेडिकल केयर, उसके बाद एजुकेशन सबके लिए इक्वल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ये सब इंश्योर किया. उसके अलावा भी
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये सब इंश्योर किया और गारंटी दिया. देन because of this revolution, women were not just considered equal. A lot of measures were also taken to make their equal participation in social and political life possible, such as maternity leave, public canteens, etc. मतलब women को because of revolution सिर्फ मतलब equal बोल के कंसिडर ही नहीं किया गया, उन लोगों को इक्वल स्टेटस इन एक्चुअल प्रैक्टिस में उन लोगों को इक्वल स्टेटस देने के लिए बहुत सारा किया है नया मतलब इनिशिएटिव्स भी लिया गया. देन द एबोलिशन ऑफ सर्वडम एंड पुश फॉर लैंड रिफॉर्म्स एम टू एम्पावर द पीजेंट्री. द रिवोल्यूशन चैलेंज ट्रेडिशनल हायरार्कीज एंड एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी. तो ये रिवोल्यूशन का मेन एम किया था to establish just and egalitarian society in Russia. So it promotes the principle of equality. Then coming towards the political aspects, the revolution established a new political order. The overthrow of the imperial government replaced autocracy with a new political order. क्या किया, एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया, क्योंकि पहले क्या था, इम्पीरियल गवर्नमेंट था मतलब एम्पायर था, लेकिन इसको किसने रिप्लेस किया, एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर ने रिप्लेस किया. कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट. द रिवॉल्यूशन ऑल्सो लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वर्किंग क्लास स्टेट एनकैप्सुलेटेड इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट. ये जो रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन ने क्या किया, जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रायोरिटी दिया. डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट मीन्स द वर्किंग क्लास, मतलब वर्किंग क्लास का क्या होगा, डिक्टेटरशिप रूल. देन this state was more democratic than the bourgeois country's state because it ensured the rule of majority over a privileged minority in pre-revolutionary Russia. So रिवॉल्यूशन होने के पहले क्या था, रसिया में किसको मतलब प्रायोरिटी मिलता था, जो प्रिविलेज्ड सेक्शन से वो माइनॉरिटी सेक्शन पर मतलब कुछ लोगों को ही क्या दिया गया था, प्रिविलेजेस दिया गया था. लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन हुआ और वी कैन से आफ्टर रिवॉल्यूशन जो वर्किंग क्लास है उन लोगों का क्या हुआ, रूल एस्टेब्लिश हुआ. Then the Bolshevik party established a one-party socialist regime. The revolution fundamentally altered the political landscape, emphasizing workers' control and collective decision making. ये revolution ने और क्या किया, ये रिवॉल्यूशन ने सिर्फ पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, सिनेरियो है, वही चेंज नहीं किया, और साथ साथ ये भी एम्फेसाइज किया, क्या एम्फेसाइज किया, वर्कर्स का क्या होना चाहिए, कंट्रोल, और साथ साथ डिसीजन मेकिंग क्या होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. देन कमिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स, द रिवॉल्यूशन रिपल इफेक्ट्स एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड रशियाज borders, shaping the trajectory of global politics and ideology. ये जो रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट सिर्फ रसिया में नहीं, ग्लोबली क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ा. सो द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड. कॉलोनाइज्ड नेशंस सो होप इन ओवरथ्रोइंग ऑप्रेसिव रिजिम्स. ये रिवॉल्यूशन ने जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स वर्ल्ड में चल रहा था वो सबको क्या क्या इंस्पायर किया, और जो कॉलोनाइज्ड नेशंस थे उन लोगों के बीच में एक क्या लाया, एक होप पैदा किया कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, जो ऑप्रेसिव रिजिम है उसको क्या कर सकते हैं, वो लोग ओवरथ्रो कर सकते हैं और खुद का रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन द बोल्शेविक विक्ट्री चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड नोशन ऑफ कैपिटलिज्म. द यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल पोज्ड द अल्टरनेटिव टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. तो इंटरनेशनली क्या था, तब कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी था उसका क्या था, डोमिनेशन. लेकिन जब ये बुर्जुआ का विक्ट्री हुआ, मतलब जीत हुआ, तो इसने जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी था उसको भी क्या क्या चैलेंज किया. देन द रिवॉल्यूशन फ्यूल्ड द ग्लोबल डिसेमिनेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज, इन्फ्लुएंसिंग लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इस रिवॉल्यूशन के वजह से और एक क्या हुआ, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ था वो क्या हुआ, स्प्रेड हुआ ग्लोबली.
Then because of this revolution, or we can say the emergence of USSR post revolution as a major power shifted the geopolitical balance. Communists became the major ideology and the USSR became the rival force to कैपिटलिज्म. तो क्या ग्लोबल जो ऑर्डर था वहाँ पे भी एक क्या आया, चेंजेस आया. कैसे चेंजेस आया? क्योंकि पहले कैपिटलिज्म का क्या था, डोमिनेशन. बट इमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर आफ्टर रिवॉल्यूशन, क्या हुआ, जो पावर था, पावर भी क्या हो गया, शिफ्ट हुआ. और जियो पोलिटिकल एक बैलेंस, मतलब वहाँ पे पावर शिफ्ट होके, तो उसके बाद क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी था, जो ग्लोबली क्या था, उसका डोमिनेशन था, वो भी मतलब उसको कॉम्पीट करने के लिए एक नया आइडियोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ. देन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड यूगोस्लाविया ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन इन देयर क्वेस्ट फॉर सोशल चेंज. सो ये रशियन रिवॉल्यूशन ने मतलब ये जो कंट्रीज थे लाइक चाइना, यूगोस्लाविया, इन लोगों को भी इंस्पायर किया. किस लिए? उन लोगों का जो सोशल मतलब स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाने के लिए. सो हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द significance of Bolshevik revolution. I have classified the significance into 4 categories. So if you have any query, then write in the comment box below, and subscribe my channel if you have not subscribed yet, and who have already subscribed my channel, please share with your friends and tell them to subscribe to get more content regarding your course or syllabus. Thank you.